स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, राइट, एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने बस जस्ट एक बार जस्ट ऐसे डिस्कस कर लिया था, लेकिन इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग इट इन डिटेल, राइट. So students, let's start with the modes of nutrition. See, there are two modes of nutrition: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Firstly, we will discuss autotrophic nutrition. Students, auto means self and trophic means food or nutrition. So this is basically self nutrition. So this is a kind of nutrition in which the organism, it makes its own food from the inorganic raw materials like CO2 and water and convert it into carbohydrates, and O2 is released. But remember, this is in the presence of sunlight and the organism must have chlorophyll in it, right? So this is a kind of nutrition in which organism synthesizes its own food with the help of inorganic nutrients. तो उसको क्या चाहिए होंगे? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और लाइक CO2, वाटर, बट रिमेंबर इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll. Beta, chlorophyll is a green pigment that is present inside the chloroplast, and this pigment is the one which can trap the solar energy, and the plants convert the solar energy into chemical energy. Clear? So if I write the equation, it is be like CO2 in water, this will produce C6H12O6. This is glucose plus 6 water and 6 O2 as a byproduct. So oxygen as a byproduct क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, right? So जो organic food बना है, that is glucose. So food is made from the inorganic material, and we know that all the plants, all the green plants basically, they show autotrophic mode of nutrition, and even an autotrophic bacteria that can synthesize its own food. If we talk about its example is BGA, that is blue green algae. बट ब्लू ग्रीन एल्गी इसको कहा जाता है, लेकिन इट्स अ बैक्टीरिया, राइट. इसका एक और नाम होता है, दैट इज साइनोबैक्टीरिया जो है, दैट इज एबल टू फॉर्म इट्स ओन फूड. अपना ही खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल. सो द ऑर्गेनिजम्स विच कैन फॉर्म देयर ओन फूड, दे आर नोन एज autotrophs. So autotrophs are the organisms which convert the inorganic material into organic food, right? But remember, non-green plants, they are not autotrophs. अब non-green plant की एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें, that is विस्कम. विस्कम जो होता है एक पैरासिटिक प्लांट है, राइट? तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता because it is a parasitic plant, right? Or another example is Cuscuta. Cuscuta is अमरबेल. ये भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता. क्लियर? सो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी कि जो ग्रीन पिगमेंट होती है वो क्लोरोफिल होती है, ये हम बात कर ही चुके हैं. लेकिन एक चीज़ और, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ट्रांसड्यूसर्स, बिकॉज दे आर द वन विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी into
chemical energy. So they convert light energy into chemical energy. So they trap the solar energy and convert it into chemical. So they are known as transducers. Clear? Now we also know that जो autotrophs होते हैं, they are the one which occupy फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. तो जितने भी फूड चेन्स हैं ये सब कहाँ से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट आर ऑटोट्रॉफ्स. सो ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स. क्लियर? नाउ सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक mode of nutrition. Students, heterotrophic mode of nutrition as a name indicate, hetero होता है others, right, different, और trophic होता है nutrition. So they are the one which can take the nutrition from the others. They cannot prepare their own food. They have to depend upon the others for their food. So it's a mode of nutrition in which an organism cannot prepare its food from the inorganic material. It has to be dependent on the other organisms. उसको depend होना ही होगा, राइट, बिकॉज वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता. तो इसमें कौन आ गए? तो इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता, लाइक दैट ऑफ द मोस्ट बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स, राइट, दे ऑल आर हेटरोट्रॉफ्स. क्लियर? सो वी कैन से इवन नॉन ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं, राइट, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मैं पीछे डिस्कस करा था, लाइक अमरबेल, कस्क्यूटा, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती. सो इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट अपॉन द अदर प्लांट्स for the food, right? So it is a heterotrophic plant. Clear? So students, तो animals हम mostly heterotrophic mode of nutrition में ले लेंगे. Clear? Now अब हम डिस्कस करने वाले हैं the types of heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition types. तो इसकी 3 टाइप्स. एक है हमारे पास सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो सैप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. स्टूडेंट, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग, डेड एंड डिकेइंग. सो ट्रॉफिक इज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ट्रॉफिक इज द न्यूट्रिशन. सो दे आर द वन विच कैन take the nutrition from the dead and decaying organic matter, right, like that of a rotten leaves, rotten bread, rotten twigs, right. So जो भी हम कह सकते हैं चीज़ गल सड़ रही होती है उससे जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट आर द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो सैप्रो लिटरली मीन्स एक्चुअली रॉटन, राइट. सो जितने भी डिकेइंग ट्रीज़ होंगे, वुड जो है वो रॉटिंग हो रही होगी जिसकी, डेड एनिमल्स होंगे, हाउस होल्ड वेस्ट होता है, राइट. सो जो ऑर्गेनिज्म उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, दे आर द सैप्रोफाइट्स. सो जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, दे आर नोन एज सैप्रोफाइट्स. लाइक इसमें जो हमारे पास परफेक्ट एग्जाम्पल है दैट इज़ ऑफ फंजाई. बेटा फंजाई इट्स अ किंगडम, राइट. फंजाई में सारे बेसिकली हम वो ऑर्गेनिज्म लेते हैं जिनमें सेल वॉल तो है लेकिन सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, राइट, और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, राइट. बेसिकली इसमें हम मल्टीसेलुलर लेते हैं लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. इसमें यूनिसेलुलर फंजाई भी होती है, दैट इज़ यीस्ट ऑल्सो. सो फंजाई में अगर हम बात करें तो मशरूम्स, यीस्ट्स, bread mold, penicillium is a fungi, right. These are the examples of fungi that show saprotrophic mode of nutrition. So actually fungi is basically saprotrophic mode of nutrition. So they are the one
सैप्रोफाइट्स क्या होंगे? दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड आउटसाइड, राइट? जो भी बाहर कॉम्प्लेक्स फूड डिके हो रहा होता है, राइट, जो डेड है, डिके हो रहा होता है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, लेकिन रिमेंबर आउटसाइड, राइट? सो दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड that is dead and decaying outside their body, राइट? और फिर ये क्या करते हैं, उस जो आउटसाइड जो उसने तोड़ा था मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, उसमें किस में कन्वर्ट कर देते हैं ये? इनटू सिंपल वंस। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो किस में कन्वर्ट होगी? सिंपल में, और वो सिंपल चीज़ को फिर क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। सो सिंपल molecules they are absorbed. So that's why saprotrophs are also known as osmotroph. क्या कहते हैं उनको हम? osmotrophs, because they will absorb simple inorganic molecules, right? तो इसको हम क्या कहते हैं? osmotroph with the help of osmosis. We all know that from higher concentration to lower concentration of water. Clear? So they break complex organic food or dead and decaying food outside their body into simple ones, and simple ones is absorbed, and they are also known as osmotrophs because they take in simple inorganic molecules. या simple organic molecules भी हम बोल सकते हैं. Clear? Next is the parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition. See, बेटा parasites क्या होते हैं? सबसे पहले parasites are the one which obtain their nutrition, which obtain their food from the body of another living organism, right? तो जिससे वो लेते हैं nutrition, that is known as host, right? So parasites, they are the organisms which take their nutrition from host, but without killing it. Yes, a parasite usually harms a host. हार्म तो उसको करता है, नंबर ऑफ डिजीजेस भी कॉज कर सकता है, राइट? सो पैरासाइट हम कह सकते हैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या करता है? फीड करता है. सो पैरासाइट विल रिसीव बेनिफिट, राइट? पैरासाइट को क्या होगा? बेनिफिट होगा, लेकिन होस्ट को क्या होगा? दैट इज हार्म, right? So most of the diseases which affect the mankind or the any other animals and plants, they are caused by the parasites. So parasitic mode of nutrition is shown by basically bacteria भी show करता है, even fungi, right? Even some of the plants, मैंने आपको पहले भी बताया था, some of the plants like जो non green होते हैं, like Cuscuta is known as अमर बेल, इसको अक्ष बेल भी कहते हैं, राइट? अनदर एग्जाम्पल इज विस्कम, राइट? और अगर हम इसकी और डिस्कशन करें, और ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जो एक्ट करते हैं एज पैरासाइट्स, वो है प्लाज्मोडियम. बेटा प्लाज्मोडियम इज एक्चुअली मलेरियल पैरासाइट विच इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलिस मस्किटो, राइट? लाइक राउंड वॉर्म्स, flatworms, right? They all cause diseases, right? बेटा ये जो डिजीज़ हैं, दे इवन इसमें डिजीज़ कॉज करने वालों में ये भी इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक लाइस, टिक्स, माइट्स, ये भी इंक्लूड होंगे. सो कितने सारे एग्जांपल्स होगी पैरासाइट्स की? बैक्टीरिया, फंजाई, कस्क्यूटा, ये प्लांट है पैरासिटिक प्लांट, विस्कम, प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स, लाइस, टिक्स एंड माइट्स, राइट? और अब हम इसमें एक और अगर एग्जांपल डिस्कस करें तो टेप वॉर्म इज एक्चुअली अ फ्लैट वॉर्म,
क्लियर. नाउ नेक्स्ट है होलोजोइक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन. Holozoic mode of nutrition. बेटा holozoic nutrition means feeding of solid food या ingestion या feeding of solid food, right? और most of the animals including human beings they all show holozoic mode of nutrition, right? So holozoic mode of nutrition is the one in which an organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion, and then the food is digested and then absorbed and then it is utilized by the organism. So holozoic mode of nutrition is a nutrition of the taking in of solid food. तो इसके जो steps होंगे that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So फूड को खाना इज़ इंजेशन, फिर उसको कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल में कन्वर्ट कर देना, इट इज़ डाइजेशन. फिर उसको सेल्स जो हैं उसको ले लें या ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाए इनसाइड द सेल्स इज़ एब्जॉर्प्शन. एंड असिमिलेशन, अगर जिस सेल ने लिया है उसके सेल का प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाए. प्रोटोप्लाज्म इज़ न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. फाइनली जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा दैट इज़ रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ईजेशन. क्लियर. सो हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्टली ये चीज़ें शो करते हैं दे आर ऑल एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, डियर, जिराफ, फ्रॉग, अमीबा, दे ऑल शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर. सो इसकी जो एग्जाम्पल्स होगी दैट आर अमीबा, man, fish, even we can say lion, tiger, cattle, सभी ये कैसा शो करते हैं दैट इज़ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस कर लिया डिटेल में, राइट. सो बाकी के का जो चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे home and stay safe.